بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے سفر پر روانہ ہونا تھا۔ انہوں نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا، میرے ساتھ دوسرا ہجرت کرنے والا کون ہوگا؟ جواب میں حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، ابو بکر صدیق ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک چادر اوڑے ہوئے تھے۔ اسی حالت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچے۔ دروازے پر دستک دی تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے دروازہ کھولا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور چادر اوڑے ہوئے ہیں۔ یہ سنتے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بول اٹھے، اللہ کی قسم، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً کسی خاص کام سے تشریف لائے ہیں۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی چارپائی پر بٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوسرے لوگوں کو یہاں سے اٹھا دو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حیران ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ تو سب میرے گھر والے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فوراً بول اٹھے، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا میں آپ کے ساتھ جاؤں گا؟ جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں تم میرے ساتھ جاؤ گے۔ یہ سنتے ہی خوشی کے مارے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے اپنے والد کو روتے دیکھا تو بہت حیران ہوئی، اس لیے کہ میں اس وقت تک نہیں جانتی تھی کہ انسان خوشی کی وجہ سے بھی رو سکتا ہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ ان دونوں اونٹنیوں میں سے ایک لے لیں، میں نے انہیں اسی سفر کے لیے تیار کیا ہے۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں یہ قیمت دے کر لے سکتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ پر میرے ماں باپ قربان، میں اور میرا سب مال تو آپ ہی کا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹنی لے لی۔ ناظرین، بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کی قیمت ادا کی تھی۔ اس اونٹنی کا نام قصوہ تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک آپ کے پاس ہی رہی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں اس کی موت واقع ہوئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہم نے ان دونوں اونٹنیوں کو جلدی جلدی سفر کے لیے تیار کیا، چمڑے کی ایک تھیلی میں کھانے پینے کا سامان رکھ دیا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی چادر پھاڑ کر اس کے ایک حصے سے ناشتے کی تھیلی باندھ دی، دوسرے حصے سے انہوں نے پانی کے برتن کا منہ بند کر دیا۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری اس اوڑھنی کے بدلے جنت میں 2 اوڑھنیاں دے گا۔ ناظرین، اوڑھنی کو پھاڑ کر 2 کرنے کے عمل کی بنیاد پر حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کو ذات النطاقین کا لقب ملا، یعنی 2 اوڑھنی والی۔ یاد رہے کہ نطاق اس دوپٹے کو کہا جاتا ہے جسے عرب کی عورتیں کام کے دوران کمر کے گرد باندھ لیتی تھی۔ پھر رات کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ روانہ ہوئے اور پہاڑ سور کے پاس پہنچے۔ سفر کے دوران کبھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چلنے لگتے تو کبھی پیچھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، ابو بکر ایسا کیوں کر رہے ہو؟ جواب میں انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں اس خیال سے پریشان ہوں کہ کہیں راستے میں کوئی آپ کی گھات میں نہ بیٹھا ہو۔ ناظرین، اس پہاڑ میں ایک غار تھا۔ دونوں غار کے دہانے تک پہنچے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا، آپ ذرا ٹھہریے، پہلے غار میں داخل میں ہوں گا، اگر غار میں کوئی موذی کیڑا ہوا تو کہیں وہ آپ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار میں داخل ہوئے۔ انہوں نے غار کو ہاتھوں سے ٹٹول کر دیکھنا شروع کیا، جہاں کوئی سوراخ ملتا اپنی چادر سے ایک ٹکڑا پھاڑ کر اس کو بند کر دیتے۔ اس طرح انہوں نے تمام سوراخ بند کر دیے، مگر ایک سوراخ رہ گیا اور اسی میں سانپ تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سوراخ پر اپنی ایڑی رکھ دی۔ اس کے بعد
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में दाखिल हुए। उधर सांप ने अपने सुराख पर एड़ी देखी तो उस पर डंक मारा। तकलीफ की शिद्दत से हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन उन्होंने अपने मुंह से आवाज न निकलने दी, इसलिए कि उस वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके जानों पर सर रखकर सो रहे थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सांप के डसने के बावजूद अपने जिस्म को जरा सी भी हरकत न दी, न आवाज निकाली कि कहीं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख न खुल जाए। ताहम आंख से आंसू निकलने को वो किसी तरह न रोक सके। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गिरे। उनके गिरने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुल गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखों में आंसू देखे तो पूछा, अबू बकर क्या हुआ? उन्होंने जवाब दिया, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, मुझे सांप ने डस लिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआबे दहन सांप के कांटे की जगह पर लगा दिया। उससे तकलीफ और जहर का असर फौरन दूर हो गया। सुबह हुई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जिस्म पर चादर न नजर आई तो दरियाफ्त फरमाया, अबू बकर चादर कहाँ है? उन्होंने फरमाया, अल्लाह के रसूल, मैंने चादर फाड़ फाड़ कर इस गार के सुराख बंद किए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए और फरमाया, ए अल्लाह, अबू बकर को जन्नत में मेरा साथी बनाना। इसी वक्त अल्लाह ताला ने वही के जरिए खबर दी कि आपकी दुआ कबूल कर ली गई है। नाज़रीन, उधर कुरैश के लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में इस गार के करीब आ पहुंचे। उनमें से चंद एक जल्दी से आगे बढ़कर गार में झांकने लगे। गार के दहाने पर उन्हें मकड़ी का जाला नजर आया, साथ ही 2 जंगली कबूतर नजर आए। इस पर उनमें से एक ने कहा, इस गार में कोई नहीं है। एक रिवायत में यूं आया है, उनमें एक उमैया बिन खल्फ भी था। उसने कहा, इस गार के अंदर जाकर देखो। किसी ने जवाब दिया, गार के अंदर जाकर देखने की क्या जरूरत है? गार के मुंह पर बहुत जाले लगे हुए हैं। अगर वो अंदर जाते तो ये जाले बाकी न रहते, न यहाँ कबूतर के अंडे होते। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब उन लोगों को गार के दहाने पर देखा तो आप रो पड़े और दबी आवाज में बोले, अल्लाह की कसम, मैं अपनी जान के लिए नहीं रोता, मैं तो इसलिए रोता हूं कि कहीं ये लोग आपको तकलीफ ना पहुंचाएं। इस पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू बकर गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है। उसी वक्त अल्लाह ताला ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिल को सुकून बख्श दिया। इन हालात में अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को प्यास महसूस हुई। उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका जिक्र किया तो आपने इरशाद फरमाया, इस गार के दरमियान में जाओ और पानी पी लो। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उठकर गार के दरमियान में पहुंचे। वहां उन्हें इतना बेहतरीन पानी मिला कि शहद से ज्यादा मीठा, दूध से ज्यादा सफेद और मुश्क से ज्यादा खुशबू वाला था। उन्होंने इसमें से पानी पिया। जब वो वापस आए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, अल्लाह ताला ने जन्नत की नहरों के निगरान फरिश्तों को हुक्म फरमाया कि इस गार के दरमियान में जन्नतुल फिरदौस से एक चश्मा जारी कर दें ताकि तुम इसमें से पानी पी सको। ये सुनकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैरान हुए और अर्ज किया, क्या अल्लाह के नजदीक मेरा इतना मकाम है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ, बल्कि ए अबू बकर, इससे भी ज्यादा है। कसम है उस जात की जिसने मुझे हक के पैगाम के साथ नबी बनाकर भेजा, वो शख्स जो तुमसे बूस रखे जन्नत में दाखिल नहीं होगा। गर्द कुरैश मायूस होकर गारे सोर से हट आए और साहिली इलाकों की तरफ चले गए। साथ ही उन्होंने ऐलान कर दिया, जो शख्स मोहम्मद या अबू बकर को गिरफ्तार करे या कत्ल करे उसे 100 ऊंट इनाम में दिए जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस गार में 3 दिन तक रहे। इस दौरान उनके पास हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी आते जाते रहे। ये उस वक्त कम उम्र थे मगर हालात को समझते थे। अंधेरा फैलने के बाद ये गार में आ जाते और मुंह अंधेरे फजर के वक्त वहां से वापस जाते। इससे कुरैशी ख्याल करते कि उन्होंने रात अपने घर में गुजारी है। इस तरह
कुरैश के दरमियान दिन भर जो बातें होती ये उनको सुनते और शाम को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचाकर बता देते। नाज़रीन, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के एक गुलाम हजरत आमिर बिन फहीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। ये पहले तुफैल नामी एक शख्स के गुलाम थे। जब ये इस्लाम ले आए तो तुफैल ने उन पर जुल्म ढाना शुरू किया। इस पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उससे इन्हें खरीद कर आजाद कर दिया। ये हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बकरियां चराया करते थे। ये भी उन दिनों गार तक आते जाते रहे। शाम के वक्त अपनी लकड़ियां लेकर वहां पहुंच जाते और रात को वहीं रहते। सुबह मुंह अंधेरे हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जाने के बाद ये भी वहां से अपनी बकरियां उसी रास्ते से वापस लाते ताकि उनके कदमों के निशानात मिट जाएं। इन 3 रातों तक उनका बराबर यही मामूल रहा। ये ऐसा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हिदायत पर करते थे। हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यही हुक्म दिया था कि वो दिन भर कुरैश की बातें सुना करें और शाम को उन्हें बता दिया करें। आमिर बिन फहीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हिदायत थी कि दिन भर बकरियां चराया करें और शाम को गार में उनका दूध पहुंचाया करें। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी शाम के वक्त उनके लिए खाना पहुंचाती थी। इन 3 के अलावा इस गार का पता किसी को नहीं था। 3 दिन और रात गुजरने पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया, अब तुम अली के पास जाओ, उन्हें गार के बारे में बता दो और उनसे कहो वो किसी रहबर का इंतजाम कर दे। आज रात का कुछ पहर गुजरने के बाद वो रहबर यहाँ आ जाए। चुनांचे हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सीधी हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आईं। उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम दिया। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फौरन उजरत का एक रहबर का इंतजाम किया। उसका नाम अरीकत बिन अब्दुल्ला लैसी था। ये रहबर रात के वक्त वहां पहुंचा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ही ऊंट के बिलबिलाने की आवाज सुनी, आप फौरन अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ गार से निकल आए और रहबर को पहचान लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऊंटों पर सवार हो गए। इस सफर में हजरत अबू बकर ने अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला के जरिए अपने घर से वो रकम भी मंगवा ली थी जो वहां मौजूद थी। ये रकम 4-5 हजार दिरहम थी। जब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमान हुए थे तो उनके पास 40-50 हजार दिरहम मौजूद थे। गोया कि तमाम दौलत उन्होंने अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दी थी। जाते वक्त भी घर में जो कुछ था मंगवा लिया। उनके वालिद अबू कहाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। उनकी बीनाई खत्म हो गई थी। वो घर आए तो अपनी पोती हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहने लगे, मेरा ख्याल है अबू बकर अपनी और अपने माल की वजह से तुम्हें मुसीबत में डाल गए हैं। मतलब ये था कि जाते हुए सारे पैसे ले गए हैं। ये सुनकर हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया, नहीं बाबा, वो हमारे लिए बड़ी खैर और बरकत छोड़ गए हैं। हजरत अस्मा कहती हैं, इसके बाद मैंने कुछ कंकर एक थैली में डाले और उनको ताक में रख दिया। इसमें मेरे वालिद अपने पैसे रखते थे। फिर उस थैली पर कपड़ा डाल दिया और अपने दादा का हाथ उन पर रखते हुए मैंने कहा, ये देखिए रुपए यहाँ रखे हैं। अबू कहाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना हाथ रखकर महसूस किया और बोले, अगर वो ये माल तुम्हारे लिए छोड़ गए हैं तब फिक्र की कोई बात नहीं, ये तुम्हारे लिए काफी है। हालांकि हकीकत ये थी कि वालिद साहब हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ कर गए थे।